Hello, students. Welcome back. So today is a new day and a new lesson. Okay, let's begin. And let's begin our, as always, like a quote. Your journey belongs to you. See, this is like a general statement. Which I would like to explain that your journey is only dependable to you only. You don't need to prove anyone else. You need to prove yourself. Okay, so don't मतलब कुछ ऐसा होता है ना सोसाइटी में, don't take it pressurizing anything. Just do for yourself. Okay, that is there. All right, so let's begin. So today's we are gonna cover techniques of scientific management. See, it is बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर, बहुत लंबा सारा है, तो पहले देख लेते हैं. ठीक है, we'll do one by one, and today we are gonna cover this only, functional foremanship only. Then we'll have another lecture for this, and then work study, differential piece space system, and mental revolution. So these are the things. So techniques apne okay, let me tell you that we have covered the concept. Okay, we have covered about the evaluation, nature, significance we have done. Okay, and Fiol ki nahi sorry what was it, Taylor ke principles we have done, those 5 principles. Okay, so this much we have done, and now we are going to do the techniques of scientific management. ठीक है, this is the next thing. बहुत लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, so I have divided these in some lectures. So अभी first अपन functional foremanship करेंगे, then it includes standardization and simplification of work, and then includes work study. Okay, which includes fatigue study, method study, time study, and motion study. Okay, so we'll do that one by one. Then the techniques of scientific management के अंदर आता है differential pitchway system and mental revolution. Okay, तो ये सब कुछ है इसमें. अभी if you cannot get by the name, don't worry about that, and we'll do accordingly. उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे. ठीक है, तो हो जाएगा. आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठे आप लोगों को. दैट इज वाई आई एम थिंकिंग टू गो स्लो एंड गो वन by covering all those aspects. I'm not leaving anything. Okay, all right. So functional foremanship अपन करने वाले हैं. So basically what is it? See, this is the technique जो कि develop करी गई थी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए. As single supervisor may not be an expert in all the aspects of work. Okay, so this technique was developed to improve the quality of work, as single supervisor may not be an expert in all aspects of the work. Okay, that is the basic example. So functional foremanship means क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो भी मतलब इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके. ठीक है, तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वॉट एवर हैज टू बी डन इज फंक्शनल फोरमैनशिप. बेसिक फंडा, आई होप यू गॉट इट. ओके, नेक्स्टली सी, कोई भी सिंगल सुपरवाइजर या फिर कोई भी एक इंसान नहीं अच्छे से सब चीजों पे ध्यान दे सकता, क्वालिटी पे भी, क्वांटिटी पे भी, डिलीवरी करनी हो ये वो. तो उसके लिए जो भी वर्कर्स है आर टू बी सुपरवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट फॉरमैन. ओके, सो सिंगल सुपरवाइजर नहीं कर सकता है, सो देयर शुड बी लाइक वर्कर्स हु विल सुपरवाइज बाय द स्पेशलिस्ट फॉरमैन. ठीक है, ये स्कीम जो थी फंक्शनल फॉरमैनशिप की, ये इट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एट सुपरवाइजरी लेवल. देयर वाज एन प्रिंसिपल, ओके, जो कि प्रिंसिपल था स्पेशलाइजेशन एट सुपरवाइजरी लेवल. ओके, तो दिस वाज द प्रिंसिपल जो कि इसका एक तरह का एक्सटेंशन हो गया फंक्शनल फॉरमैनशिप, बिकॉज यहाँ पर भी हम सुपरवाइज कर रहे हैं, हम एक स्पेशलिस्ट हायर कर रहे हैं, सो दैट
काम जो है वो बहुत ही अच्छे से हो पाए. Okay, so this is something which is called functional foremanship. In short, we are I'm gonna describe it in detail. Okay, okay, this is the picture. अभी फंक्शनल फॉर्मेटशिप का एक बहुत नॉर्मल सा ये पिक्चर है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो फैक्ट्री मैनेजर है, उनके पास में दो लोग हैं, प्लानिंग इंचार्ज भी है और प्रोडक्शन इंचार्ज भी है. प्लानिंग इंचार्ज में विल बी लाइक द सुपरवाइजर. ओके, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देखेगा, रोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरिंग, ये सब कुछ वो फोकस करेगा, ये सब कुछ वो देखेगा कि भाई ये टाइम से हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें देने हैं वो उनको अच्छे से देंगे, डिसिप्लिन रखेंगे एंड सो मेनी थिंग्स. प्रोडक्शन इंचार्ज जो है, he will be like speed boss, gang boss, repair boss and inspector. He will behave like this. Okay, he will be specialized in these things where he will be behave like a bossy, and that all those मतलब उनके जो भी ये सारे काम हैं, प्लानिंग इंचार्ज के ये सारे काम और प्रोडक्शन इंचार्ज के ये सारे काम will include workmanship. Okay, will work like a workman. Okay, so that is the main motto behind this. So this is how it works. This is how the categorization happens. Okay, categories बन जाती है और उसके साथ साथ में तुम्हारा जो काम है, जो वर्क है, वो डिवाइड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट. अभी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, आई एम सो सॉरी, आई हैव जस्ट not written the full meaning of it. Okay, please just ignore for some time. This is like management. Okay, so तुम्हारे बुक का जो कंटेंट है वो एक्सप्लेन करते हैं. मैंने एक थोड़ा सा फिगर बता दिया. अभी we'll see the book का stuff. Okay, so in the factory system, a foreman represents the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on daily basis. सी, बहुत नॉर्मल सी बात है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी सपोज फैक्ट्री जहाँ लगी होती है, जहाँ जैसे कि माइंस की फैक्ट्री हो गई, जैसे कि कोई वुड का मैन्युफैक्चरर है, उनकी फैक्ट्री है, वहां पे एक फॉर्मैन रखा जाता है जो कि हर मैनेजरल फिगर, एक सॉर्ट ऑफ वो मैनेजरल फिगर होता है जो कि हर चीज को अच्छे से कैसे हैंडल करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, और बिल्कुल डेली बेसिस पे वो नजर रखता है अपने जो भी वर्कर्स हैं उन पे. ओके, तो दैट इज व्हाट द फॉर्मैनशिप इज. दैट इज व्हाट फॉर्मैन इज हायर्ड. डे टू डे फंक्शंस को, डे टू डे कांटेक्ट में रहता है वो लोगों के. सपोज कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सपोज कुछ टेक्निकल दिक्कत है, सपोज कुछ डिस्प्यूट हो गए हैं, पर्सनल डिस्प्यूट या कुछ भी, तो वो सब वो ध्यान रखने के लिए इट इज बीइंग हायर्ड. ओके, सो इन द फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा कि फॉरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. अपन ने जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा था और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब अपन ने देखे थे, आई होप यू रिमेम्बर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पर हमने देखा था कि जो फॉरमैन होता है वो मैनेजर सबसे लोवेस्ट लेवल का होता है और सबसे टॉप लेवल का वर्कर होता है. ठीक है, ओके, और ही लाइक लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजर. सो वहां पे हमने ये देखा था. तो he is like a pivot around whom revolves the entire production planning, implementation and control. मतलब he is like जहाँ पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा प्रोडक्शन का, ठीक है, प्लानिंग, जो भी प्रोडक्शन प्लानिंग, जो भी कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोडक्शन को प्लानिंग, मतलब लाइक प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करनी है, और अदर देन दैट इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल, मतलब अगर कुछ दिक्कत आ गई तो कंट्रोलिंग का ध्यान रखना, ये सब कुछ जो है, मतलब he behaves like, the foreman behaves like looking after so many things in a common way. Okay, so thus Taylor concentrated on improving the performance of his role in the factory setup. So टेलर ने ये बोला कि यार इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका जो रोल है वो फैक्ट्री में सेटअप होना चाहिए. ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि
ये जो है वो एक मतलब बहुत सारे रोल एक साथ में प्ले कर रहे होते हैं। और अभी फॉर द सेक ऑफ रिपीट करने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग जो हमने प्लान करके दे दिया उनको कि भाई आपको 100 क्विंटल कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो अभी हमने तो ये प्लान किया कि 100 क्विंटल प्रोड्यूस करना है, सेल कहाँ करना है और उसका प्रॉफिट कितना आएगा, ये सब टॉप मैनेजमेंट विल प्लान, बट इसको कैसे करना है प्रोड्यूस, ये फॉरमैन प्लानिंग करता है। ओके, सो टेलर ने ये बताया कि उनके रूल्स के हिसाब से उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए। So he identified a list of qualities of good foremen and supervisors and found that no single person could fit them all. Okay, उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने बोला कि भाई इनके रोल के हिसाब से फैक्ट्री सेटअप चेंज करो, ये वो। उन पर उन्होंने जब ये देखा और आइडेंटिफाई किया तो दे फाउंड कि कोई भी पर्सन जो है वो फिट नहीं हो पाता है। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फॉर्मैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स। तो उन्होंने भाई ऐसे बोला कि तुम फैक्ट्री सेटअप चेंज करने की कोशिश करो या इनका पोजीशन थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करो, बट जब ऐसा नहीं हो पाया तभी सजेस्ट कि भाई फंक्शनल फॉर्मैनशिप का कंसेप्ट बना दो, ठीक है, और थ्रू 8 पर्सन्स। अभी वो कैसे था, टेलर एडवोकेटेड separation of planning and execution of functions. Okay, this concept was extended to the lowest level of the shop floor. See, Taylor, ये थोड़ा सा complicated है, it is written in your book. See, functional फॉर्मैनशिप को एक्सटेंड करने के लिए और इसको इसका नाम, इसकी पोजीशन, इसका रोल प्रॉपर अच्छे से अटेन करने के लिए टेलर ने सजेस्ट करा कि यार प्लानिंग को 2 हिस्सों में तुम एक बांट क्यों नहीं देते, एक तो प्लान करने वाला लाइक प्लानिंग प्रॉपर और एक एग्जीक्यूशन फंक्शंस, ठीक है, कि भाई प्लान इधर होगा और एग्जीक्यूट इधर होगा, है ना। सो ये क्यों नहीं कर सकते हम। तो ऐसा हुआ कि बाद में जब इन्होंने ये डिवाइड कर दिया तो इसको फंक्शनल फॉर्मैनशिप कहा जाने लगा, जहां पर फैक्ट्री मैनेजर जो है वो प्लान करते थे, इंचार्ज करते थे, एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज under planning in charge 4 personnel, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, a disciplinary work. These 4 personnel will draft instructions for the workers, specify the route of the production, prepare time, cost sheet, ensure discipline respectively. Okay, so ये जो अपन ने लास्ट फिगर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि that is how it works. This is how इन्होंने 8 चीजें बांट दी 2 लोगों में कि भाई प्लानिंग इंचार्ज ये करेगा, उनके अंदर 4 पर्सनल्स होंगे जहां पे वो कार्ड क्लर्क मतलब इंस्ट्रक्ट करेगा, वो रूट तय करेगा, वो टाइम डिसाइड करेगा, वो कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करेगा, और जहां पर डिसिप्लिनरी वर्क जो है वो क्या रहेगा, उसमें भी 4 पर्सनल बांट दिए उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया टोटल 8 हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ड्राफ्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स के लिए, स्पेसिफाई करेंगे रूट प्रोडक्शन के लिए, टाइम और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे सो दैट डिसिप्लिन बिल्कुल बना रहे। ओके, सो दैट वाज द फंडा बिहाइंड द फंक्शनल फॉर्मैनशिप, बिकॉज जो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप का सोचा था वो तो नहीं हो पाया, तो उन्होंने ये कहा कि चलो यार इस चीज को डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इस चीज को डिवाइड किया जाएगा तो आप अगर इसको दो भागों में डिवाइड करके टोटल वापस 8 पार्ट लाइक 4 पार्ट्स में अगर इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और तो इसके लिए जो अपन ने शुरुआत में प्लानिंग इंचार्ज वाला चार्ट देखा था, तो उसका फंडा अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट टेलर हैज बीन क्रिएटेड to make a disciplined environment in the organization firstly. Secondly, इस पर्सनल से इस मतलब लाइक इस प्लानिंग इंचार्ज के कंसेप्ट से और डिसिप्लिनरी इंचार्ज के कंसेप्ट से you will be able to have like a certified and synchronized work behavior. Okay, so that is the main funda behind it. Okay, so these respectively were responsible for timely and accurate completion of job, keeping machines and tools etc. ठीक है, सो ये ही जिनको जो वर्क असाइन किया गया है उस हिसाब से वो लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं अबाउट द टाइम, द कॉस्ट, द एक्यूरेसी, द कंप्लीशन ऑफ जॉब, मशीन्स का ध्यान रखना, टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके लिए वो लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं
जिन लोगों को ये काम असाइन किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑपरेट कराना, वर्कर्स से आप कैसे ऑपरेट करा पाते हैं, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है कि नहीं मशीन्स की, टूल्स की, टू चेक द क्वालिटी, ये सब कुछ जो है उनके वर्क के अकॉर्डिंग दे विल असाइन कि भाई तुम ये इस चीज के लिए असाइंड हो, तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के रिगार्डिंग। ओके, यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट, to operate for any further operations, for like proper working conditions मशीन की, या जो भी है कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी टूल्स है वो क्या मतलब बिल्कुल ऐसे खराब तो नहीं हुए हैं, दे आर फाइन इन द कंडीशन और नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी चेक के लिए जिसको रखा गया है, अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो इज इट गुड और नॉट, क्वालिटी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने क्वालिटी पे कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको क्योर किया है कि नहीं, साथ ही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत आई है तो करेक्टिव एक्शंस लिए हैं कि नहीं, ये सब कुछ जो है। और ऐसी ऐसी हजारों चीजें हैं जो विच हैज बीन सीन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विच हैज बीन चेक्ड टू द रिस्पॉन्सिबल, विच हैज बीन चेक्ड एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि भाई वो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। ओके, सो अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, जो प्रोडक्शन इंचार्ज होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो ऐसे अपन ने देख लिया और देख लेते हैं। इंचार्ज पर्सनल हु वुड वर्क स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अभी इसको देखते हैं क्या क्या है। तो प्रोडक्शन इंचार्ज में अपन ने पहले देख लिया, वो बोला। अभी सेकंड हाफ जो है इसका, जिसमें 4 लोग इंक्लूड होते हैं, वो ये लोग होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ओके, तो प्रोडक्शन इंचार्ज includes this thing. So functional foremanship जो है एक एक्सटेंशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क का एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। इन दोनों चीजों का ये एक एक्सटेंशन हो गया, इन दोनों प्रिंसिपल्स का, जहां पर हर वर्कर ऑर्डर लेता है, साथ ही ये 20 मतलब लाइक 8 फॉरमैन जो कि इस प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, वो प्रोडक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया, आपको कीवर्ड्स याद करने होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। इफ यू फॉरगेट द लैंग्वेज, इफ यू फॉरगेट द एक्चुअल कंसेप्ट, यू कैन रिमाइंड ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया, राइट। सो ये कीवर्ड्स हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप के, ओके, विच यू हैव टू लर्न कि भाई ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क का। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, और साथ ही ये एक्सटेंशन है स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। ओके, ये इस चीज का भी एक्सटेंशन है जहां पर आपको एक स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको चीजें असाइन की जाती है, साथ ही आपको ये बताया जाता है हर वर्कर के द्वारा, हर वर्कर को ये बताया जाता है कि अब आपको ऐसे करना है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड एवरी वर्कर विल टेक ऑर्डर्स। तो ये सिमिलर, ये ऐसा ही होता है डिवीजन ऑफ वर्क में, जो कि अपन ने बहुत पहले भी बहुत सारा पढ़ रखा और आगे जाके भी अपन बहुत पढ़ने वाले हैं कि ये बॉस है, सपोज ये मैनेजर है, तो he will divide his work into people, they will divide आगे जाके ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे ऐसे बनता जाता है, वो पूरा चेन बनता जाता है। तो that is how division of work works and that is how this functional foremanship is. It is like extension, थोड़ा बढ़ाकर चढ़ाकर और थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा बनाकर ऐसे कर दिया, लेकिन है ये वही, है ना। तो फॉरमैन के क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्वांटिटीज क्या क्या, क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं फॉरमैन चूज करने के, और उसमें एक्चुअल में क्वालिटी होनी क्या क्या चाहिए, क्या नेचर रहना चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। सो फॉरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, ओके, बेसिक चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रीड, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल, डेक्सटेरिटी एंड एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ। ये सब चीजें जो है ये तो होनी ही चाहिए। ये फॉरमैन में क्या, ये सब में होनी चाहिए। मतलब हर किसी अच्छे एम्प्लॉय को देखते टाइम ये देखा जाता है कि भाई वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका मेंटल कंडीशन एकदम ब्राइट है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है। उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू बी एजुकेशन, यू नो इंग्लिश, यू नो लैंग्वेजेस, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, है ना। तुम्हारा जजमेंट कैसा है, तुम किस बेसिस पे चीजों को जज करते हो, तुम्हारा नजरिया कैसा है,
स्पेशल नॉलेज किस फील्ड में है, एनर्जी, तुम्हारा एकदम एनर्जी एकदम ऐसे ढीले ढीले नहीं हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, और एकदम तुम्हारी इम्यूनिटी इज एट लाइक पार लेवल। सो मतलब ये सब चीजें देखी जाती है। एनर्जी लेवल तुम्हारा, ऑनेस्टी कितनी है, तुम कितने लॉयल हो इस फर्म को लेके जहाँ तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है, तुम्हारी हेल्थ बिगड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ी होगी तो हाउ विल यू एबल टू वर्क, छुट्टी वगैरह पे रहोगे तो कौन मैनेज करेगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखी जाती है, बिकॉज जहाँ ये सारे क्राइटेरियाज मैच करते हैं, वहां ही यू विल बी एबल टू हैव अ प्रोडक्टिव एंड लाइक बिल्कुल एफिशिएंट फॉरमैन, जहाँ जिसको जो वर्क असाइन किया जाएगा वो उसको इजीली परफॉर्म कर पाएगा। ओके, सो अगर ये सारी क्वालिटीज अगर नहीं हो पाती है इन अ सिंगल पर्सन, तो टेलर ने प्रपोज किया है 8 स्पेशलिस्ट। Each specialist is to be assigned work according to his qualities। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सारी क्वालिटीज अभी किसी एक इंसान में, अभी ये भैया हैं, ओके, अभी ये भैया हैं, वो टेक्निकल में अच्छे हैं, लेकिन ये फिजिकल कोई भी काम करने में ही लाइक थोड़े से हल्के फुल्के, यू कैन सी इज वेरी पतला, है ना, तो बड़े ढीले से हैं, और फिजिकल कामों में कुछ वर्कलोड में कुछ सामान इधर उधर करने में इज नॉट गुड। तो टेलर ने क्या कहा कि भाई तुम ये सारी क्वालिटीज एक इंसान में नहीं पा सकते हो, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है कि भाई तुम्हें एक ही इंसान में सारी क्वालिटीज मिल पा रही हैं, तो व्हाट विल यू डू। सो ही प्रपोज्ड दैट डिवाइड दिस इन द 8 सेक्शंस, ओके, जहां पे जिनके पास में जो क्वालिटी है आप उस हिसाब से उसको असाइन कर दो। ओके, सो ही प्रपोज दिस एंड दिस, मतलब लाइक उससे क्या होता है कि आप हर स्पेशलिस्ट को अपना अपना काम सौंप दोगे, जैसे कि कोई टेक्निकल में ज्यादा अच्छा है, कोई फिजिकल काम करने में ज्यादा अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा है, कोई और एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो जो फॉरमैन है, जो नीचे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनके पास में बहुत सारे काम होते हैं, बिकॉज दे आर लाइक प्रोडक्शन के अंदर जो होते हैं उनके पास एक्चुअली बहुत काम होता है। तो उनका ये कहना है कि यार तुम 8 लोगों में बांट दो ना, क्यों इतनी मगजमारी करने का, ऐसा। सो इसलिए उन्होंने ये बोला कि भाई तुम इसी चीजों को सेम अगर क्वालिटीज मैच नहीं करती है तो डिवाइड इनटू 8 स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल, अभी ये एग्जांपल जो मैंने दिया है उसको थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से दे देते हैं। दोज विद टेक्निकल मास्टरी, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो टेक्निकल वाले हैं, जिनको इंटेलिजेंस और प्लानिंग वर्क में एकदम पकड़ होती है, उनको वैसा वाला काम दे दो। जिनके पास में एनर्जी और गुड हेल्थ है, उनको एग्जीक्यूटिव वर्क दे दो, एग्जीक्यूट करने वाला काम दे दो कि भाई आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और जो टेक्निकल वाले हैं उनको बोल दो कि भाई आप प्लानिंग वाले में ध्यान दो, प्लानिंग कर लो, आप अच्छे से पूरा ये देख लो कि भाई काम कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा होना चाहिए। और ये वाले जो है वो ये देख लेंगे कि मतलब वो एनर्जी है और एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी हेल्प वगैरह सब चाहिए होती है, तो आप एग्जीक्यूशन में देख लेना। तो दैट इज हाउ इट इज, ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज हाउ इट शुड बी वर्क ना। बिकॉज स्पेशलिस्ट अगर आप नहीं है किसी चीज में और आपको गलत चीजों में असाइन कर दिया जाए तो व्हाट विल यू डू। सपोज मैनी ऑफ यू, और आई विश आप में से कोई नहीं हो जिसको सपोज साइंस लेनी हो, ओके, और साइंस में बड़े अच्छे 90-95 मार्क्स आए हैं आपके, लेकिन फॉर सम रीजन यू हैव टू टेक कॉमर्स, ओके। सो पहली बात तो ये है कि 11th-12th तो वैसे भी रिग्रेट में जाने वाली है कि यार ऐसा क्यों हो गया, फॉर वॉट एवर रीजन, और नहीं जानी चाहिए वैसे, पर अगर जाती है तो बिकॉज यू गाइज आर नॉट फिटिंग इन दिस प्रोसेस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव दैट स्पेशलिटी इन द साइंस स्ट्रीम, यू शुड गो फॉर इट। एंड सम इफ मतलब like any of you has done this, so please change your stream in your graduation thing. Do not just spoil your life, okay, whatever reason. If you wanted to take science or humanities or anything, change it in your graduation session, okay, and give your 100% in this 12th examination, okay. So yeah, come to the point. So this is what it is, okay. और एक और एग्जाम्पल अपन देखते ही हैं, वो स्क्वायर और सर्कल वाला।
सर्कल स्क्वायर में स्क्वायर ही फिट होता है अच्छे से, सर्कल फिट नहीं हो पाएगा। ओके, और सर्कल में सर्कल ही फिट होता है, स्क्वायर नहीं फिट हो पाएगा। बड़ा कुछ स्क्वायर आ गया तो फिट ही नहीं हो पाएगा, छोटा भी फिट नहीं हो पाएगा, गैप्स आ जाएंगे। तो जिसको जहाँ जो स्पेशलिटी हो वहां उनको असाइन कर दो, सिंपल। सो अभी वापस हम आ जाते हैं इस चार्ट पे जो अपन ने ऑलरेडी देखा है। ओके, सो शुरुआत में देखा था तब आपको थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे थे, क्या है क्या नहीं है ये वो। सो अभी वापस आ जाते हैं फैक्ट्री मैनेजर पे। फंक्शनल फॉरमैनशिप का जो बेसिक फंडा है उसको मैंने जो टेलर का फंडा है जो उसने बोला है उसको अच्छे से वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सो फंक्शनल फॉर्मैनशिप में उन्होंने टेलर ने बोला कि आप यार दो चीजों में डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज। एक कोई प्लानिंग करेगा, बाकी वाले प्रोडक्शन करेंगे। उसमें इन्होंने बोला कि एक 8 कैटेगरीज बना दो, बिकॉज कैसा होता है कि जो लोग डेली काम कर रहे होते हैं उनको मतलब लाइक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एक दूसरे से कि भाई मेरा क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो इस हिसाब से आप चीजें असाइन कर दो, उनके नीचे 8 लोगों को रखो, 8 तरीके का वो बनाओ, मतलब लाइक 8 तरह का कैटेगरी बनाओ, एंड देन दैट्स हाउ यू वर्क। ओके, समबडी वुड बी लाइक रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट, डिसिप्लिनरी, सब कुछ, ये सब कुछ आप देखो इस तरह से, और दैट इज हाउ इट विल वर्क एंड दैट इज हाउ इट विल मतलब गिव अ गुड रिजल्ट। ओके, प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीडी बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये वो जो सुपरवाइज करे, रिपेयर वाला जो भी है वो अच्छे से देखे काम अच्छे से हो ही पा रहा है कि नहीं, ठीक है। जो भी साथ में जो भी लोग हैं वो साथ में अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ चीजों को मेंटेन करना है, मशीनरी है या बहुत सारी चीजें होती है मेंटेन करने के लिए, वो हो पा रही है या नहीं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक अप टू। इंस्पेक्टर जो है वो सुपरवाइज करता है, वो पूरा अच्छे से देखता है कि भाई इंस्पेक्ट करता है कि चीजें सही जा रही है कि नहीं। ओके, अदर देन दैट प्लानिंग इंचार्ज है तो उसमें भी मतलब टाइम और कॉस्ट को कैसे कवर करना है, डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डिसिप्लिन आप है कि नहीं है। रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ये सब कुछ जो है ये टेलर ने बताया है और उन्होंने ये बोला है। और साथ ही एक और चीज कि ये जो टेक्निक है ये एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क को अगर ये भूल जाओ, इसको नाम से आपको समझ में ना आए तो डिवीजन ऑफ वर्क याद कर लेना, बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क तो नाम से मालूम पड़ जाता है कि व्हाट इज इट। ओके, सो ये दिस इज लाइक एक्सटेंशन ऑफ इट, ताकि डिसिप्लिन रहे, हर किसी को अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम मिल पाए, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कुछ ना हो, हर सबको अपने हिसाब से काम मिल पाए और जो जो क्राइटेरियाज हैं उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर पाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस फंक्शनल फॉर्मैनशिप मीन्स एंड दैट इज व्हाट इट इज। ओके, रेस्ट टेक्निक्स वी आर गोना डन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट टेक्निक, ओके, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वो अभी करनी है और लेटर ऑन विल डू अदर्स। ओके, so this is what is it and अभी आपके लेक्चर्स बचे हैं, दिस इज लाइक अ 5th लेक्चर एंड अभी बचे हैं इतने। ओके, सो डोंट वरी, विल डू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक्चुअली पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निक्स के साथ साथ आप अभी जो फियोल के जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, प्रिंसिपल्स फियोल के जैसे कि टेलर के। और मैंने ये पहले भी बोला है कि ये आपको आपकी हर प्रोफेशनल कोर्स में काम आने वाले हैं, चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, ये सब कुछ सारे प्रिंसिपल्स, ये सारी टेक्निक्स, ये फैटिक स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, ये सब आपको थ्योरी में आगे जाके भी हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। So please focus on that and build your basic very strong so that आपको आगे जाके कुछ दिक्कत ना आए। This is the formation of your basics, okay, and this is the last chance you have to make your basics very strong. So don't forget anything. Don't be very what do you say? Don't be very lazy regarding this. You have time. Please utilize it. Be very consistent. Okay. All right. Okay. Bye bye. See you.